First up, viewers, we have some big breaking news coming in from the state of Maharashtra. Maha cabinet expansion will be taking place today, and it will also coincide with the oath-taking ceremony in Nagpur. With the state legislature's winter sessions start as well from tomorrow, around 30 to 32 ministers are expected to join this particular ceremony, which can have up to 43 members. The expansion follows the Mahayuti Alliance's sweeping victory in the November polls, securing 230 out of 288 seats, with BJP leading with 132 seats. The lion's share goes to the Saffron Party. Deputy Chief Ministers Eknath Shinde and Ajit Pawar are finalizing the cabinet composition, holding key meetings with all the party leaders in the run-up to the cabinet expansion. All eyes will be on the top portfolios, that is urban development, home, as well as the other finance portfolio. These three are the plum portfolios, and all eyes are on who will get the lion's share of the cabinet composition this time around. Sandeep is joining me live this morning. A very good morning to you, Sandeep. Today is the day that everybody in the state of Maharashtra, was waiting for. Tell us about the inside story of the cabinet expansion today. See, what we hear right now is that 20 to 30 ministers could take oath today. What are the departments is not yet clear. That, has been given to Eknath Shinde or Ajit Pawar. But yes, urban development, home ministry is something that was in fact demanded by Eknath Shinde. Not only that, but revenue was also demanded. But it will be the Bharatiya Janata Party to decide whether to give revenue, urban development or home to Eknath Shinde or keep it with them. Definitely, there are many other plum portfolios as well, over which the Shinde faction and Ajit Pawar faction are eyeing upon, but ultimately the things will get clear in the next few hours. In next 2 to 3 hours, all the ministers, all the MLAs would be in fact gathering out there in Nagpur Vidhan Sabha, where the oath-taking ceremony of the new cabinet ministers would take place. Right, Sandeep, many thanks for joining us with all those details. Well, we'll get you all the live action from Nagpur, viewers, when the oath-taking ceremony begins. But it's time for us to shift our focus on the biggest story. In the last 24 hours, Twitter, social media, everything is abuzz about the Prime Minister's speech in the Lok Sabha. The Constitution debate face-off has reached an all-new flashpoint, with the Prime Minister reminding the Congress about its past sins, and also him tearing into 4 generations of Congress party. Here's the story. संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान, और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं, और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट करने में है। लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में ही पैदा हुआ, ये जो धारणा बननी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था। उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया।
देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर रीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया। जिस जस्टिस एच.आर. खन्ना ने उनके चुनाव में उनको खिलाफ जो जजमेंट दिया था, वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एच.आर. खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस पीरियड से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो एक किताब में लिखा गया है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है, सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ है। कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और वो अति पिछड़े समाज से आते थे। उनके अध्यक्ष श्रीमान सीताराम केसरी जी कहते हैं, बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया। अपनी पार्टी
लेकिन इस देश को पता है, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था और वो 4 पीढ़ी ने चलाया, वो जुमला था गरीबी हटाओ। ये ऐसा जुमला था, ये गरीबी हटाओ ऐसा जुमला था, उनकी राजनीति की रोटी तो सकती थी लेकिन गरीब का हाल ठीक नहीं होता था।